Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me? Am I audible to you? Hello. Okay. So today we are going to start off with the topic of ocular pharmacology, ocular therapeutics. This is not a new topic for you because you have read pharmacology in your third year and you have read the management of different diseases which have been taught to you by different teachers. All of them have covered this topic in a uh, section-wise manner. However, I will be just revising and refreshing your knowledge and uh, giving you an insight into what medicines and drugs are being used in ophthalmology. Now, what is a drug? What is a substance or a chemical which we call drug? Now, there are different definitions, but the one which is the most simple and comprehensive is a chemical substance used in the treatment, cure, prevention, or diagnosis of a disease. So it covers four aspects. आप देखें ना, treatment, cure, prevention, or diagnosis. So a number of compounds are grouped into under the topic of drug. There are few terms which are used very frequently. One is pharmacokinetics. Basically, pharmacokinetics is the process or the system or the sequence of events that follows once a medicine is taken orally or parenterally or topically or with whatever route it is administered, then whatever happens to that medicine in the body is pharmacokinetics. That includes its absorption, its distribution, its metabolism, and excretion. So this is pharmacokinetics. Pharmacodynamics. Now, pharmacodynamics is the biological activity and clinical effects. This is the actual objective for which the drug is used. For example, attachment of drug with the cellular receptors, then its movement into the cell, then what changes does it initiate in the cell of the microorganism or the body, what changes take place, and what are the side effects. So this is pharmacodynamics. This slide just briefly reviews the anatomy of eye, and you must be very well conversant with it by now. The outermost is the conjunctiva, which merges with the cornea, and between the cornea and iris is the anterior chamber, and between the iris and the lens is the posterior chamber. So this is the lens which is suspended by zonular ligaments, and behind the lens is the vitreous cavity or posterior segment with retina and choroid beneath the retina. The axons from different ganglion cells of the retina, they converge and leave the eye at the optic nerve, at the optic disc, and continue as optic nerve head. Blood ocular barrier. Again, this is a term which is frequently used. Blood ocular barrier simply means what are the
sites which offer resistance to the entrance of drug into the eyeball. कहाँ कहाँ पे आई ड्रग को रेजिस्टेंस मिलती है? तो ये जो ब्लड ऑकुलर बैरियर है, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नियल एंडोथेलियम. Corneal endothelium, as you know, is single layered hexagonal tissues cells which have tight junctions. So the drug cannot pass in between the cells, it has to pass through the cells, and that is either an active process or that involves certain processes. Ciliary epithelium. Now, as you know, while studying in glaucoma, you must have read the production of aqueous humor. Aqueous humor is produced by the ciliary processes, which are covered by two layers of epithelial cells. These again are they having tight junctions and they don't allow the free movement of molecules. Then is the retinal capillaries. Retinal capillaries again have tight junctions, they have pericytes, and they do not allow exudation of fluid or molecules freely into the extracellular space. And the last but not the least is the retinal pigment epithelium, which constitutes the outer blood ocular barrier. Last time when I talked to you about retina, I told you that the retinal pigment epithelium have tight junctions and they resist free movement of the molecules. How a drug can be administered for eye? आँख में दवाई डालने या पहुँचाने के क्या-क्या routes available हैं? So the common routes which are available are drops, the topical. Topical means कि आप आई की surface के ऊपर medicine को drop कर रहे हैं. It can be in the form of drops, it can be in the form of ointments, ocucerts, or contact lenses. So this is all these are included in topical route. Then is the local route. Local route में क्या आ जाता है? Periocular और intraocular. Periocular injections में आ जाते हैं subconjunctival injection, subtenon injection, periorbital, peribulbar, retrobulbar, और इसी तरह intraocular में intracameral and intravitreal. Intracameral कहते हैं an injection when it is injected into the anterior chamber. Anterior chamber is between the cornea and the iris. So when the drug is injected in the anterior chamber, it is called intracameral, and when it is injected directly into the posterior segment, that is into the vitreous cavity, then it is called intravitreal. Right. And systemic. Well, you are very well versed. Most of the diseases we use this route, which is oral, intravenous or intramuscular. So ये तो इस रूट से तो आप पहले ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं. We are mostly concerned with periocular administration of the drug. Periocular में सबसे पहले है drops. Drops are liquids which are topically instilled into the anterior, into the conjunctival sac. ठीक है? These drops enter the eye largely through the cornea and partly through the conjunctival vessels. ज़्यादातर इनकी इंट्राओकुलर पेनिट्रेशन जो है वो थ्रू कॉर्निया है. Interestingly, when we instill a drop into the eye or conjunctival sac, most of it is drained either through nasolacrimal duct into the nose or it spill over
into onto the cheeks. So the net amount of drug which is retained into the eye is not more than 20 to 25%. तो आपने देखा कि 80% के लगभग दवाई जो है वो तो या ज़ाया हो जाती है, ईदर थ्रू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और स्पिल ओवर। थोड़ी सी अमाउंट है जो आँख में जा सकती है। सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मेडिसिन इनटू द आई। पहले ही हमने इतनी सारी वेस्ट कर दी, तो बाकी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन तो प्रोफिशेंट होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो और आँख के अंदर अवेलेबल। So there are different ways by which you can increase the absorption. For example, if you are using multiple drops, then you should have an adequate time space between two drops. Hello? I hope you are hearing to me or you are listening me normally. My voice is audible. Okay. So starting from where we left. तो एक तो ये कि बहुत सारी दवाई जो है वो पहले ही ज़ाया हो गई। तो आप जब मल्टीपल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड एंश्योर गैप ऑफ बिटवीन अबाउट 3 to 5 minutes बिटवीन डिफरेंट ड्रॉप्स, ताकि एक ड्रॉप जो है वो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो। ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग क्या करती है? ब्लिंकिंग के दो इफेक्ट्स हैं, एक तो स्क्वीज करके आई ड्रॉप्स को स्पिल ओवर कर देती है और दूसरा ब्लिंकिंग के साथ लैक्रिमल पंप एसोसिएटेड होते हैं जो टीयर्स को या ड्रग को पुश कर देते हैं इंटू नेजल लैक्रिमल, तो दवाई बाहर होती है। लिहाजा once you instill a drug, ask the patient to resist blinking. Try keep the eye open or keep it gently closed. Don't do one. The patient should not squeeze the eye. That is most important. Gently close करके रखें या खुली रखें. Either of them is okay. अच्छा, सेकंड ये है कि जैसे आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग इज ड्रेन थ्रू द nasal electric duct. So if you apply a pressure, a mechanical pressure on the medial canthus of the eye, thereby mechanically obstructing the flow of drug into the nasolacrimal duct, then you can make the quantity of drug available in the conjunctiva, increase the quantity of drug available in the conjunctiva, and subsequently increase the bioavailability of the drug. इसका एक और फायदा भी है कि medicines which have systemic side effects, for example beta blockers which are used, so they can affect and cause asthma. In that case, if you press the mechanically obstruct the nasolacrimal sac, then you will reduce the absorption of drug into the body, and this reduced systemic absorption will consequently result in reduced quantity, reduced side effects. अच्छा, third is increase the contact time of the eye drops with the cornea. Normally the eye drops are watery. जैसा आपने देखा है, if you put a drop of water anywhere, it will spill, it will break, राइट लेफ्ट चला जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं। तो अगर हम इसको हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज में ड्रग को मिक्स करते हैं, वी यूज HPMC as a vehicle, then HPMC being a viscous fluid will have a longer contact time
and it will have a longer time to stay in the communicable sac, thereby it will increase the bioavailability of the drug. Similarly, polyvinyl alcohol chain, this also increase the contact time of the drug. Third, another point is permeability through the cornea. ये एक बड़ा crucial point है because corneal epithelium is hydrophobic and stroma is hydrophilic. तो आप अगर चाहते हैं कि एक ड्रग efficiently absorb wood, then it should have both hydrophobic and hydrophilic properties. Hydrophobic means कि वो water में dissolve नहीं होती, fat soluble है, और hydrophilic means कि वो water soluble है. तो ड्रग जो कंपनीज फार्मेसीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे dispense the drug and they attach certain molecules to the drug which makes it hydrophobic as well as hydrophilic. Another point is increasing the concentration of medicine in a drop. For example, अगर एक आई ड्रॉप्स हैं जिनमें 0.1% मेडिसिन है, उसके मुकाबले में एक दूसरा ड्रॉप है जिसमें 1% मेडिसिन अवेलेबल है, तो नेचुरली जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है. Molecular size, of course, the smaller the molecular size, better is the absorption, and so is the alkalinity. Acidic drugs are poorly absorbed. Ointments जो है उनकी क्या एडवांटेज है? उनकी भी एडवांटेज यही है कि being fatty in nature or thick viscous in nature, they increase the contact time of the medicine available to the cornea. तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं. तो बट ऑइंटमेंट्स हैव अ साइड इफेक्ट दैट दे विल मेक द विजन ब्लरी. एक ऐसे लगेगा जैसे आपके आगे फिल्म सी आ रही है, थिन फिल्म जिसके थ्रू आप देख रहे हैं और आपको नज़र ठीक नहीं आ रहा है. तो वो जो है वो ब्लरीनेस की चीज़ों को इरिटेट करती है. इसलिए ऑइंटमेंट्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरनाइट यूज, यानी कि सोने से पहले पेशेंट को कहीं अपॉइंटमेंट आ रही है, द मेडिसिन विल स्टे इन द आई फॉर द होल नाइट एंड दैट विल इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन द आई. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आप मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो है, टॉपिकल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की प्रभाव. एक और टेक्निक जो है वो है सस्टेन रिलीज. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो जिसमें ड्रग सोक करके उनको जब हम पेनिट्राइल सैक में रखते हैं तो वो आस्ते आस्ते ड्रग को रिलीज करती रहती हैं एंड देयर बाय इंक्रीजिंग दी अवेलेबिलिटी, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्लो रिलीज और ऑक्सीजन. ठीक है, ड्रग इज incorporated into the carrier. डिफरेंट किस्म के कैरियर यूज होते हैं, कोलेजन शीट्स होती हैं, लाइपोसोम्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं. तो इनके एडवांटेज है कि कॉन्टैक्ट लेंस को जब आप सोक कर देते हैं मेडिसिन में, देन दैट मेडिसिन इज एब्जॉर्ब ग्रेजुअली. ये देखें ना, हेयर the patient has been applied with a slow release device. इसके ऊपर मेडिसिन जो है वो लगी हुई है और वो आहिस्ता 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 इधर से रिलीज होती रहेगी and it will be available to the patient for a longer period of time, thereby increasing the contact time. And so is the philosophy of using a contact lens. तो ये वो टेक्निक्स हैं जो टॉपिकल यूज ऑफ मेडिसिन को बढ़ा देती है. अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हमने टॉपिकल तो डिस्कस कर लिया. नाउ कमिंग ऑन टू पेरिओकुलर. पेरिओकुलर में ये एक बहुत पुरानी और टाइम टेस्टेड टेक्निक है, रिट्रोवाल्वर.
Retro means behind and bulbar means eyeball. So the drug is delivered behind the eyeball. It is mostly used for anesthesia for ocular surgery because the ciliary ganglion is situated behind the eyeball within the cone of muscle. So the drug is intended to be delivered at that point. तो इसकी वजह से बेहतरीन किस्म का पेशेंट gets a very good quality of anesthesia and it also affects the motility of the muscles, so it also provides akinesia. But it is a very risky technique. एक तो ये कि आप बहुत बड़ी सारी नीडल यूज करते हैं. It's a blind procedure. You may damage any structure starting from sclera, optic nerve, muscles. किसी को भी आप डैमेज कर सकते हैं, नर्व डैमेज कर सकते हैं, ब्लड वेसल डैमेज हो जाए. अगर वेन डैमेज हो जाए जो कि फ्रीक्वेंटली हो जाती है तो ग्रेजुअली ब्लड पीछे जमा हो जाता है. और अगर खुदा न खास्ता छोटी सी आर्टरी डैमेज हो जाए बड़ा रैपिडली डेवलपिंग ड्यू टू हेमरेज हो गया और उसको फिर मैनेज करना पड़ता है प्रॉम्प्टली because otherwise it will raise the intraorbital pressure and will compromise the ocular perfusion. Peribulbar जो है, peribulbar is now a popular technique. इसमें the drug is delivered behind the eyeball but outside the muscle cone. ऑफ कोर्स चूँकि वो सिलियरी गैंग्लियन जो है वो मसल कोन के अंदर है तो इसका एनेस्थीसिया उतना एफिशिएंट नहीं होता. इसी तरह इसका एक आइनीसिया उतना एफिशिएंट नहीं होता बट स्टिल इट इज़ अ फेयरली गुड टेक्निक. सब कंजंक्टाइवल एंड सब टीनॉल. सब कंजंक्टाइवल जो है ना इसका फ़ायदा ये होता है कि एज द नेम सेज द ड्रग इज डिलीवर्ड जस्ट बीनीथ द कंजंक्टाइवल साइड. तो सब कंजंक्टाइवल का फ़ायदा ये है कि द ड्रग इज़ अवेलेबल फॉर एंटीरियर सेगमेंट और सब टीनॉन जो है उसका एडवांटेज होता है कि इट्स अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड फॉर द पोस्टीरियर सेगमेंट. क्योंकि जो ड्रॉप्स डालते हैं या ऑइंटमेंट डालते हैं उनकी पेनिट्रेशन पोस्टीरियर सेगमेंट विच इज़ बिहाइंड द लेंस उधर बहुत ही पुअर होती है. वेरी फ्यू ड्रग्स हैव कैन रीच दी posterior segment when they are used as topical. So this is a very effective means of delivering a drug for the posterior segment. अगर आपको याद हो यूवीआइटिस पढ़ाते हुए मैंने आपको posterior subtenon इंजेक्शन का जिक्र किया. ये देखिए ये जो है ना सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शन लगा रहे हैं. दिस इज अ टेक्निक एंड यू कैन सी द कंजंक्टाइवा इज रेज्ड एज अ ब्लैक. तो ये सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शन. ये जो है ये इसमें ज़्यादा बेहतर है. ये देखें दिस इज अ रेट्रोबल्बर टेक्निक. ये नीडल जो है द नीडल टिप इज बिहाइंड द आईबॉल इन द मसल एंड दिस इज पेरीबल्बर टेक्निक. द नीडल इज outside the muscle cone. Now, of course, इसके जो है डिलीवरी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी बट जस्ट लुक इट कैन डैमेज द मसल एंड सो क्लोज टू द ऑप्टिक नर्व एंड अदर वेसल्स एंड एवरीथिंग. सो रेट्रोबल्बर इज अ फेयरली रिस्की टेक्निक. ये जो है ना ये है सब टीनॉल. You make a small hole in the phenol capsule and you insert a fine cannula which has a flexible tip. तो वो आप ले जाकर उसको आई बॉल के पीछे इधर इंजेक्ट कर देते हैं. So now the medicine is available between the sclera and the phenol capsule for a longer period of time और वहाँ से gradually to sclera absorb होती है. तो ये जो थे ये आपके बेसिक जो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे. इसके अलावा आपको पता है ओरल रूट है जो यू नो वेरी वेल एंड देन इज द parenteral route which includes intramuscular which is painful and is not as efficient as intravenous where the
medicine is directly injected into the vascular compartment. Okay, now coming on to certain medicines जो कि हम frequently use करते हैं आई, and the first heading is mydriatics and cycloplegics. ठीक है, mydriatics and cycloplegics जो है एक डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मिड्रियासिस क्या होता है और साइक्लोप्लीजिया क्या होता है. मिड्रियासिस जो है इट इज सिंपली द डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल. प्यूपिल को डायलेट करने की प्रोसेस को कहते हैं मिड्रियासिस. और अगर सारी बॉडी रिलैक्स कर ले तो उसको हम कहते हैं साइक्लोप्लीजिया. Most of the cycloplegic drugs are also mydriatic, but all mydriatics are not cycloplegic. जब साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो मसल रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से विजन जो है वो ब्लरी हो जाता है, खासतौर पे नियर विजन. और मगर उसकी एडवांटेजेस भी हैं. ख़ास तौर पे जब यूवियाइटिस है उसमें जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो इरिटेट करते हैं सिलियरी मसल्स को, जिसकी वजह से सिलियरी बॉडी स्पैज़ में चली जाती है, विच कॉजेज सिवियर पेन. तो जब आप साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप डालते हैं तो आप ये मस्कुलर स्पैज़ को ब्रेक कर देते हैं एंड यू रिलीव द पेशेंट ऑफ द पेन. इसी तरह जब आपने रिफ्रैक्शन करनी होती है छोटे बच्चों की, उसमें यू वांट के ये जो है साइक्लोप्लेजिक यूज़ किए जाए. इसी तरह जो साइक्लोप्लेजिक्स हैं ये जो वेसल वॉल की कॉम्पिटेंस है उसको भी इम्प्रूव करते हैं. दे रिड्यूस द एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज. तो इनके मल्टीपल फ़वाइद हैं जिनकी वजह से दे आर यूज्ड इन यूवियाइटिस एज वेल एज इन रिफ्रैक्शन एंड सर्टेन अदर कंडीशन. नाउ एट्रोपिन. Atropine is the strongest cycloplegic available, and as the name says, it is anticholinergic, that is parasympathetic. So its action lasts for 7 to 14 days. 7 days तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद ग्रेजुअली कम होना शुरू होता है, and it stays for 14 days. So if a patient accidentally puts a drop of atropine, the vision will be blurred for 14 days. Another medicine is cyclopentolate. इसका जो cycloplegia, it is not as effective as atropine, but it is a very good cycloplegic. और इसका जो साइक्लोप्लेजिया है ये 2 to 3 days तक रहेगा. ट्रोपिकामाइड जो है वो सिर्फ मिड्रियासिस है, साइक्लोप्लेजिया नहीं, एंड इट अफेक्ट्स वेन ऑफ इन पियास. तो अगर आपने किसी पेशेंट का फंडस एग्जामिन करना है तो ट्रोपिकामाइड इज़ द बेस्ट मेडिसिन. अगर आपने उसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करनी है या आपने इसको यूवियाइटिस के लिए मैनेज करना है तो फिर यू हैव टू यूज साइक्लोपेंटोलेट और एट्रोपिन. ये जितने भी एंटीकोलिनर्जिक्स हैं इनके मिलते जुलते साइड इफेक्ट्स हैं. कुछ हद तक तो ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. फ्लैशिंग ऑफ फेस, फीवर, टैकीकार्डिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, एक्सेट्रा. मगर इनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो फ्लैशिंग ऑफ फेस है, खासतौर पर बच्चों में, और टैकीकार्डिया. And in old individuals also. Be very careful while using atropine. Patient को जब बच्चे को देंगे उनको frequently कहें कि इसको fever हो सकता है. And mind you, I have seen patients having a fever of 103 degrees centigrade by just a drop of it. Patient को जरूर बता दें कि अगर fever हो तो stop medicine and start some antipyretic like Panadol or Brufen. Flushing of face is very common. Dehydration or dryness of tongue करती है, इसलिए patient should take frequent fluids. So, बहरहाल, these are anticholinergic. Another group of medicine which causes mydriasis is
सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या करते हैं? सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो है वो एड्रेनलिन के इफेक्ट को ऑगमेंट करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन मेडिसिन। अच्छा, जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं ये स्फिंक्टर प्यूपिली पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर प्यूपिली मसल जो है ये उसको नॉकआउट करते हैं। नतीजा ये होता है कि जो डायलेटर प्यूपिली की इनहेरेंट टोन है वो पुल करके प्यूपिल को बड़ा करते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो है ये क्या करते हैं? ये डायलेटर प्यूपिली मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपको बहुत तकड़ा और क्विक ड्रेसेस चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप ट्रोपिकामाइड और फिनाइलएफ्रिन को यूज़ करेंगे। ट्रोपिकामाइड क्या करेगी? ये पैरासिम्पैथोलिटिक है, एंटीकोलिनर्जिक है, ये सर्कुलर मसल, यस, जो स्फिंक्टर है प्यूपिल का उसको नॉकआउट कर देगी। और फिनाइलएफ्रिन जो है वो डायलेटर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, विच विल पुल द pupil away from the center। तो इससे बड़ी जल्दी मिड्रेसिस हो जाएगा। बहरहाल फिनाइलएफ्रिन इज एप्राक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन, डिपिवफ्रीन, they are all sympathomimetic। Brimonidine or apraclonidine or dipivafrin, they act on alpha-2 receptors which are also present at the ciliary body. Hence, they reduce the production of acnes also. So dipivafrin, it is a prodrug. Prodrug, that I mean is that once inside the eye, it is converted into epinephrine, which is a very strong mydretic। तो ये जो नीचे की तीन है, एप्राक्लोनिडीन, ब्राइमोनिडीन और डिपिवफ्रीन, they are anti-glaucoma medicines also। They reduce the intraocular pressure as well as they produce some sort of cyclopegia। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिम्पैथोलिटिक्स पर। These are the sympathomimetics and now come on to sympatholytics। Sympatholytics जो है they are basically used in glaucoma। ये क्या करते हैं? These medicines they block the receptors। ये जो है ये मोस्टली बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, बीटा रिसेप्टर्स जो हैं they are present in ciliary epithelium and they help in the production of aqueous। तो जब बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो क्या होगा? aqueous प्रोडक्शन कम हो जाएगी। There are different medicines available which are used in ophthalmology। These are timolol, levodonolol, metoprolol, cartiolol, betaxolol। Of these, betaxolol is beta-1 selective, while rest are both beta-1 and beta-2 selective, or we can say non-selective। तो beta-2 receptors जो हैं they are also present in bronchial muscles। और ये मेडिसिन जो है उन लोगों को जिनको एस्थमा हो उनके अंदर फेयरली स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोस्पैज्म करके एस्थमा को एग्रोवेट कर देते हैं। इसीलिए एस्थमेटिक पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और एस्थमेटिक पेशेंट में बीटेक्सोलॉल ही देना। अगर आपने कोई सिम्पैथोलिटिक देना है तो इट हैज़ टू बी बीटेक्सोलॉल, क्योंकि वो सिर्फ बीटा-1 रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करता है जो आई के अलावा हार्ट में मौजूद है मगर लंग में नहीं मौजूद। इफ यू रिकॉल योर नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी, तो वो उधर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो एस्थमेटिक पेशेंट्स में और एलर्जिक पेशेंट्स में फेयरली सेफली यूज की कर सकते। लाइक एनी अदर मेडिसिन, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ब्रेडिकार्डिया है,
डिप्रेशन है, फटीग, कंफ्यूजन, ड्राई आईज एंड सो ऑन। आप ये साइड इफ़ेक्ट्स आप कैसे कम कर सकते हैं? ये साइड इफ़ेक्ट्स आप ऐसे कम कर सकते हैं इफ़ यू apply mechanical pressure on the medial canthus of the eye in the region of medial canthus. When you use these drops, press the area around the medial canthus. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि these drops will not be able to enter the lacrimal sac and then the nose or nasopharynx through nasolacrimal duct. और ज़्यादातर इसकी एब्जॉर्प्शन, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नेज़ल और नेज़ोफेरिंक्स से होती है। जब आप यहाँ पर ऑक्लूड कर देते हैं तो आप इसकी एब्जॉर्प्शन की नेज़ोफेरिंक्स को बहुत हद तक मिनिमाइज कर देते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गई सिम्पैथोलिटिक्स। ओके, आई होप अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। हेलो, आप लोग मौजूद हैं? ये तो नहीं कि लैपटॉप ऑन करके दाएं बाएं गपशप लगा रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर laptops and computers. Good, very nice, very nice. That's good. It's encouraging. Right. So now we will shift on to ये जो मेडिसिन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताई, सिम्पैथोमाइमेटिक्स हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, दे आर यूज्ड इन ग्लाकोमा. सो another group of medicine which is used in glaucoma is prostaglandin analogs. ये बड़ी ही रेवोल्यूशनाइज मेडिसन है. इन आने के बाद से रेवोल्यूशनरी चेंज आई ग्लाकोमा मैनेजमेंट में, क्योंकि इनिशियली the only medicine available with us was parasympathomimetic in the form of the only parasympathomimetic. So that used to cause pupil reconstruction, that used to reduce the vision, that used to cause severe headache, and we were literally handicapped. But after the availability of beta blockers and especially the prostaglandin analogs, management of glaucoma becomes very efficient, or they reduce the intraocular pressure significantly. Different medicines are available like latanoprost, bimatoprost, travoprost, uniprostone. यूनोप्रोस्टोन इज़ अ प्रोड्रग. ये जो है ना उसमें हाइड्रोलाइज होकर एक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये हाउ डू दे एक्ट? दे इंक्रीज द रेंज ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू यूवियोस्क्लेरल रूट. यूवियोस्क्लेरल, याद रखें, देयर आर टू वेज ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज. One is, ये आपको जिन्होंने ग्लाकोमा पढ़ाया, the master taught you. One is through trabecular meshwork. This is the conventional route or
जिसको हम ट्यूबरकुलर रूट कहते हैं। दूसरा है यूवीएस स्क्लेरोसिस। ये जो है ये सीधी बॉडी के एंटीरियर सरफेस से जो ड्रग एब्जॉर्ब होकर ड्रेन करती है उसको कहते हैं यूवीएस स्क्लेरोसिस एब्जॉर्ब। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं ये यूवीएस रूट से एक्वस की ड्रेनेज को इंक्रीज करती है। नतीजतन दे रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। The intraocular pressure is dropped within 3 to 4 hours and the action lasts for at least 24 hours. So this is another advantage that you can use them once a day. जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर की डायनल वेरिएशन होती है और जो स्पाइक आती है वो शाम के वक्त आती है। तो आप उसको अगर शाम को यूज़ करेंगे तो यू कैन इफेक्टिवली किल दैट स्पाइक एंड मेंटेन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। लाइक एनी अदर ड्रग इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्राउन पिगमेंटेशन कर देती है आई लैशेज़ की और आयरस की। अब आई लैशेज़ की और आयरस की ब्राउन पिगमेंटेशन हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है बिकॉज हम सब की जो है ना आई लैशेज़ ब्लैक है और आई या ब्राउन है या डार्क ब्राउन है। बट जो फेयर स्किन इंडिविजुअल्स हैं जैसे वेस्ट में उनकी आई लैशेज़ जो है वो बिल्कुल लाइट ग्रे कलर की होती है। अब उनके अंदर अगर एक पूरी आई लैश की रो में 6-7 आई लैशेज़ ब्लैक निकल आएंगी तो इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। या उनका आयरस जो है वो हेजल कलर का है या ग्रे कलर का है या ब्लू कलर का। अगर उसका प्रोपोर्शन ब्राउनिश हो गया या एक आई का ब्राउन हो गया तो वो है बिल्कुल दोनों आईज डिफर कर देंगे। दैट लुक्स वेरी बैड। सो दे आर स्पेशली इट इज a problematic issue for the women and in men also to an extent. ये आई लैशेज़ के साथ साथ पेरी ऑकुलर स्किन को भी ना थोड़ा सा पिगमेंट कर देती है। जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो कंजंक्टिवल हाइपरीमिया करती है, आईज रेड हो जाती हैं। लोग आकर आपको कहेंगे कि आँख में जलन करती है। अगर किसी को इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन है तो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये तो एक मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का। इट मीडिएट्स और इट पोटेंशिएट्स दी इन्फ्लेमेशन। तो अगर किसी को पहले से इन्फ्लेमेशन है तो ये उसका एग्रावेट कर देगा और ये कॉर्निया पे छोटे छोटे इरोजन्स बना देता है एंड एट टाइम्स इट कॉजेज swelling of the retina which is called macular edema. But these drugs, that is prostaglandin analogs, are very good. Why? Because of their potent side effect. ये तकरीबन 20 to 25% intraocular pressure को drop कर देती है। Secondly, ये once a day इनका यूज है तो इनकी compliance बहुत अच्छी होती है। Patients are very happy to use it, especially in old age. Another group of drugs that brings the intraocular pressure down are carbonic anhydrase inhibitors. अब आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द सिलियरी बॉडी एज वेल। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आर अवेलेबल एज सिस्टेमिक मेडिसिन in the form of acetazolamide, methylzolamide, and they are also available as topical drops. Systemic drops है वो तो बहुत मेडिसिन जो है सॉरी acetazolamide है आपको बहुत कम यूज हो गया इसका because of its increased side effects like causes severe gastric distress, diarrhea, causes passion loss, acidosis, tingling sensations of extremities is very common. लोग कहते हैं कि हमारी हाथों पाँव पे सुइयां चल रही हैं। स्टीवन जॉनसन सीरम and so on and so forth। एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है साइड। टॉपिकली जो है ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ डॉटरिलामाइड एंड ट्रिंजोलामाइड।
ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है, दे आर वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज्ड टॉपिकली। अब आप देखिए ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन काम कर रही है और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स एक्वस की ड्रेनेज बढ़ाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को यूज करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को पोटेंशिएट करेंगे, राइट। तो अ, ये जो है ना इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑल्सो। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं टॉपिकल हार्मोनिक एनाप्लेज इनहिबिटर्स के, वो बड़े लिमिटेड से हैं, कंज्यूम कम के ड्यूरेशन, bitter taste after the installation of drops, जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द लीवी कैंटस। So carbonic energy inhibitors are also very effective in managing glaucoma. Osmotic agents. These agents are mostly used in acute attack of congestive glaucoma. इनको ओरली भी देते हैं और पारेंटली भी देते हैं। दिस इज यूज्ड ओरल अगर it causes very severe diarrhea, इसका अजीब सा स्वीट टेस्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स डू नॉट लाइक। अलबत्ता जो इंट्रावीनस रूट से दिए जाते हैं जिनमें मैनिटॉल और जो शामिल है, दे आर वेरी इफेक्टिव। मैनिटॉल जो है ये क्या करती है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। इट sucks the fluid out of the it sucks the fluid out of the vitreous cavity, तो vitreous को shrink कर देती है। It reduces the production of aqueous humor. So mannitol जो है it is available in 1%, sorry, in 10% and 20%, 5% and 10% solutions। और इसकी जो डोज है वो है 1 to 1.5 ml पर किलोग्राम बॉडी। तो मैनिटॉल की जो बॉटल है उसमें से आप उस हिसाब से देते हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि दे आर गिवन फेयरली रैपिडली। अगर आप स्लोली देंगे तो वो साथ के साथ मेटाबोलाइज हो जाएगी और उसका इफेक्ट ही नहीं होगा। ऑस्मोसिस जो है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इफ़ यू इन्फ्यूज इट रैपिडली तो इसका इफेक्ट अच्छा होता है। हैंस इट इज़ यूज्ड fairly rapidly, 60 to 70 drops per minute। तो आप 200 के लगभग 200 ml के लगभग आप ड्रग इंट्रावीनसली देते हैं, विच ब्रिंग्स डाउन द इंट्राओकुलर प्रेशर विद इन मिनट्स। 30-20 मिनट्स और 15 मिनट्स में ये इंट्राओकुलर प्रेशर को नीचे ले आती है। मगर ये आपने स्पेशली एक ऐसे इंडिविजुअल में जो ओल्ड एज हो या जिसके कार्डिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो, उनमें बड़ी केयरफुली यूज करें, बिकॉज सडन इंक्रीज इन द intravascular volume will put a pressure onto the myocardium, and these patients can go into frank cardiac failure और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, डायूरेसिस हो सकती है। इसलिए एजेड मेल पेशेंट्स जो हैं उनमें अगर कोई यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट, लार्ज प्रोस्टेट, तो उनमें आपको केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है। So these are the drugs which are used either individually or in combination for management of glaucoma, चाहे वो acute congestive हो, चाहे वो chronic open angle glaucoma हो, because you can use them or by utilizing their mechanism of action आप इनकी combinations को बढ़ा सकते हैं और enhance कर सकते हैं। Well, next is the anti-inflammatory pathway। एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं ये भी उन तमाम रूट से दी जा सकती हैं जो आपको मैंने पहले बताए हैं, ओरली, इंट्रावेनस, टॉपिकल, पेरी ऑकुलर और इंट्राओकुलर। द मोस्ट पोटेंट
and the most commonly used anti-inflammatory in ophthalmology are the group of corticosteroid. इसमें बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडिक्सिलिन, ट्राइएथेनोलोन। ये मेडिसिन जो है ये इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाते हैं, जबकि लोटिप्रेडनॉल और फ्लोरोमेथालोन जो है ये इंट्राओकुलर प्रेशर को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। Mechanism of action क्या है? As you all know, it inhibits the release of phospholipase A2 and as a result suppress or block both the arms of inflammation, that is cyclooxygenase and दूसरा है दोनों पाथवेज को ब्लॉक करके लाइपोऑक्सीजनेज और साइक्लोऑक्सीजनेज दोनों को ब्लॉक करके नतीजा ये है कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनकी प्रोडक्शन को which are the byproducts of arachidonic acid in the form of prostaglandins and nicotine. It also suppresses the immune response and it also suppresses the fibroblast proliferation. Hence, its prolonged use can hinder in wound healing, etc. ऑफ्थेल्मोलॉजी में इनके यूजेस जो हैं वो तो बहुत सारी कंडीशन है। मैंने कुछ इन्यूमरेट की हुई हैं जैसे ब्लेफराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, एंडोफ्थल्माइटिस, केराटिटिस, मैकुलर एडीमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, टीराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो दे आर यूज्ड बोथ एज इंट्राविट्रियली और एज ओरल। इंट्राविट्रियल यूज जो है वो उसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि इट रेजेस द इंट्राओकुलर प्रेशर, मगर इसकी एडवांटेज ये है कि जो डायबिटिक्स हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, इसके जो उनके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जितने भी इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं इफ़ यू यूज देम इंट्रावीनसली। तो ये किस किस कंडीशन में यूज़ होती है? ये डायबिटिक मैकुलर एडीमा में यूज़ होती है, सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा में होती है, एज रिलेटेड मैकुलर एडीमा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मगर इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर वेरी फ्रीक्वेंट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इज development of glaucoma and cataract. They also cause conjunctival ulceration and endoscopy. Well, these are a long list of side effects of steroids: glaucoma, cataract, exacerbation of infection by suppressing immunity, ptosis, scleral thinning because fibroblast production को कम करते हैं, CSCR हाइपरग्लाइसीमिया कर देती है, मस्कुलर वेस्टिंग करती है, ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, सप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस कर देती है, इम्यूनोसप्रेस कर देती है। तो आप इसके गिनते जाए, ये तो मैंने चंद लिखे कॉमन बेतहाशा साइड इफेक्ट्स, बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी भी कोई नहीं। हैंस इट शुड बी यूज जुडिशियसली। और स्टीरॉइड्स के यूज़ का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यू स्टार्ट ऑफ विद मैक्सिमम डोज एंड देन यू ग्रेजुअली टेपर देम ऑफ। और इसको अगर आपने सिस्टेमिकली यूज़ करना है तो प्रेफरेबली यूज इन बीडी डोज, ताकि ये आपके पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस को कम से कम डिस्टर्ब करे। और इसके साथ आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, पेप्टिक अल्सर वगैरह, तो उसके लिए आप पहले से उसको proton pump inhibitors and other medicines, antipeptic ulcer medicines देंगे। और we will keep a check on the patient's sugar levels, blood pressure and his immune system, because it can compromise and suppress them and lead to a lot of further complications. So
This is the most common group of anti-inflammatory medicines. We will review other anti-inflammatory and other medicines in our next lecture. So I think whatever we have studied today, you have grasped it. And if you have any question, you can ask me now. Hello, any question? Have you understood everything? आपका जब टेस्ट होगा तो उसमें पता चलेगा फिर आप लोग क्या कारनामा करते हैं. Okay, if you have understood this thing this much, it's very good. I am very happy, and we'll stop here. And inshallah, we will cover the remaining aspect or the remaining part of this subject tomorrow. Inshallah. Sorry. Does atropine? Why? Why should atropine cause blindness? No, no, not at all. Atropine does not cause blindness. Atropine causes blurring of vision. जब वो साइक्लोप्लेजिया कर देती है तो आपका जो लेंस है उसका अकोमोडेशन नॉकआउट हो जाता है. तो जो नियर की चीज़ें हैं, नियर विजन है, वो ब्लर हो जाता है. डिस्टेंट विजन भी कुछ हद तक ब्लर होता है पर वो काम कर रहा होता है टू एन एक्सटेंट. नियर विजन ज़्यादा अफेक्ट होता है. और सेकंड ये होता है कि चूंकि पीपल डायलेट हो जाता है तो लॉट ऑफ लाइट इज एंटरिंग इट विच कॉजेज फोटोफोबिया. फोटोफोबिया लोग जो अपनी आंखें बंद करते हैं, हाथ आगे रखते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट ब्राइट लाइट विच फर्दर affects the vision. So, but these are all, both these effects are temporary. I mean, they would wane off after about 2 weeks. Yes, if it causes blurring, then still we use it. For example, एक पेशेंट को यूवीआइटिस है, यूवीआइटिस की वजह से तो उसकी विजन पहले ही ब्लर है. अगर उसको मैकुलर एडीमा है, अगर उसको पेरिवेस्कुलाइटिस है, तो उसकी वजह से उसकी विजन तो पहले ही ब्लर है. एंटीरियर जो है आयरिडोसाइक्लाइटिस है, तो उन सब में अगर आपको याद हो तो उसमें विजन जो है वो ब्लरी हो जाते हैं. तो वो तो पहले ही ब्लर है. इवन अदरवाइज सिंस इट इज़ अ रिवर्सेबल इफेक्ट, ये जो एट्रोपिन देता है, तो अगर आप यू वे द बैलेंस, आप वे करते हैं इसके बेनिफिट को विद इट्स साइड इफेक्ट. तो अगर आपको लगे कि नहीं इसका बेनिफिट ज़्यादा है और इट्स शॉर्ट टर्म, आफ्टर 2 वीक्स ये रिवर्स हो जाएगा, तो डेफिनेटली we use it and it is a very effective medicine, especially in cases of resistant uveitis. I hope it's clear now. So you are welcome. You are welcome. Okay, so we'll see each other tomorrow, inshallah, and we'll complete the remaining part of this ocular therapy. Okay, Khuda Hafiz.